नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र। आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीवीसी गुरु ज्ञान क्लासेस में एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम टीजीटी आर्ट्स कमीशन 1998 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें डायरेक्शंस में इन क्वेश्चन नंबर 101 to 105 sentences are given with blanks to the field in with an appropriate words. For alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. Question number 101. Some regions of our country still remain dash to एवरेज मैन। इसका ऑप्शन नंबर ए है इम्पिनिट्रेबल, बी इम्पॉसिबल, सी इम्परमिएबल, डी इनएक्सेसिबल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनएक्सेसिबल। क्वेश्चन नंबर 102. द मैनर इन विच बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड in 5 trains with a short span of time suggests that it is a part of a dash. इसके ऑप्शंस है सैबोटेज, बी विलियनी, सी कॉन्स्पायरेसी एंड डी गेम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, conspiracy. Question number 103. In high school, many of us never realized the importance of grammar would dash in later life. इसके ऑप्शंस है ए एक्सरसाइज, बी प्ले, सी पोर्ट्रे, डी फिगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्ले। Question number 104. The dash of the minister's statement cannot be verified by people who have no access to official records. Option number A, validity, B, ambiguity, C, verbosity, D, veracity. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, veracity. Question number 105. I was astonished at his dash lack of knowledge about the continent of Africa. इसके ऑप्शंस है ए कोलेसल, बी ग्रेट, सी ह्यूज, डी एबंडेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलेसल। Now directions. In question number 106 to 110, a part of the sentence is printed in italic. Below are given alternatives to the bold printed part at A, B and C which may improve the sentence. Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer is D. Question number 106. Whatever be our other problems, we have no shortcoming of cheap labor in India. ऑप्शंस है इसके ए स्कार्सिटी, बी डेफिसिट, सी डिफॉल्ट, डी नो इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्कार्सिटी। 107. The record of the biggest tiger hunt has not been met since 1911 when Lord Hardinge, the Viceroy of India, shot a tiger that measured 11 feet 6 and 3/4 inches. A improved, B broken, C battered, D नो इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 108. To get one's name in the
Roland Ward's Book of Hunting Records was the hot ambition at every serious hunter. A. Extreme. B. Booming. C. High. D. No improvement. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई। क्वेश्चन नंबर 109, द ग्रेटेस्ट थिंग इन स्टाइल is to have a use of metaphor. A. Knowledge. B. Command. C. Need. D. No improvement. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमांड। क्वेश्चन नंबर 100, इन फैक्ट इफ इट हैडंट बीन फॉर द invaluable advice on so many occasions, I wouldn't have achieved anything in life. A. Remarkable advice. B. Valuable advice. C. Priceless suggestions. D. No improvements. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो improvements. Directions in question number 111 to 115, out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words sentence. Question number 111, code of diplomatic etiquette and precedence. Option number A, statesmanship. B, formalism. C, hierarchy. D, protocol. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल. हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट्स. ए, एलाइट. बी, हाईब्रो. सी, सोफिस्टिकेटेड. डी, फेस्टिडियस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेस्टिडियस. क्वेश्चन नंबर 113, वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमन sincerity and goodness. A. Egoist. B. Fatalist. C. Stoic. D. Cynic. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइनिक. क्वेश्चन नंबर 114, द कस्टम ऑफ प्रैक्टिस ए हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम. पॉलीगैमी. ए. पॉलीगैमी. बी. पॉलीफोनी. सी. पॉलीएंड्री. डी. पॉलीक्रोमी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएंड्री. 115, ए डिजीज ऑफ द माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोल्ड टू स्टील. साइजोफ्रेनिया. ए. साइजोफ्रेनिया. बी. क्लॉस्ट्रोफोबिया. सी. क्लेप्टोमेनिया. डी. मेगालोमेनिया. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेप्टोमेनिया. Direction in question number 116 to 120, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of the sentence has error. If there is no error, your answer is D. Question number 116, the party chief made it a point to store that the Prime Minister and the Union Home Minister should also come public and they see what his party man had seen. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्टी मैन. क्वेश्चन नंबर 117, ए लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स will produce unprecedented amounts of radiation that can penetrate into a biological tissue. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनप्रेसिडेंटेड. क्वेश्चन नंबर 118, वन ऑफ द नंबर्स एक्सप्रेस doubt if the minister was an atheist. No error.
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर वाज एन अथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 119, he managed to make sense of the book even though it was the first time he had anything on the subject। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेक। क्वेश्चन नंबर 120, द क्रू were on board and they soon busied themselves in preparing to meet the storm। The crew were bond and they soon busied themselves in preparing to meet the storm। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द। डायरेक्शंस in question number 121 to 150 125, four alternatives are given for the idiom phrase printed in italic in the sentence। Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase and mark it in the answer sheet। Question number 121, while the ladies continued their small talk in the drawing room, I felt bored। ऑप्शन नंबर ए, whispering, बी, backbiting, सी, gossip, डी, private conversation। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, gossip। क्वेश्चन नंबर 122, in spite of the immense pressure exerted by the militant, the government has decided not to give in। A, accede, B, yield, C, oblige, D, confirm। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, yield। क्वेश्चन नंबर 123, the old man was cut to the quick when his rich son refused to recognize him। A, surprised, B, hurt intensely, C, annoyed, D, irritated। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, hurt intensely। Question number 124, I did not mind what he was saying, he was only talking through his hat। A, talking nonsense, B, talking ignorantly, C, talking irresponsible, D, talking insultingly। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉकिंग नॉनसेंस। Question number 125, the party stalwarts have advised the president to take it laying down for a while। Option number A, to be cautious, B, to be on the defensive, C, to take rest, D, to show no reaction। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू शो नो रिएक्शन। डायरेक्शन इन क्वेश्चंस 126 to 130, out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of the given word and mark it on in the answer sheet। Question number 126, inebriate। Option number A, dreamy, B, stupefied, C, unsteady, D, drunken। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ड्रंकन। 127, harbinger। A, मैसेंजर, बी, स्टीवार्ड, सी, फोरनर, डी, पायलट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोरनर। क्वेश्चन नंबर 128, प्रीकैरियस। ए,
कॉशियस, बी क्रिटिकल, सी पेरिलस, डी ब्रिटल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रिटिकल। 129 कैंटरक्रस, ए क्वारलसम, बी रैश, सी डिसरिस्पेक्टफुल, डी नॉइसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैश। 130 टेसिचरनिटी, ए डम्बनेस, बी चेंजेबलनेस, सी हेजिटेशन, डी रिजर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 131 हजार वर्षों के समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए शती, बी सहस्त्राब्द, सी शताब्दी, डी दशाब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहस्त्राब्द। क्वेश्चन नंबर 132 जो तीनों कालों का है के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए कालातीत, बी सर्वकालिक, सी त्रिलोकी, डी त्रैकालिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रैकालिक। प्रश्न नंबर 133 जो स्वयं उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए अजन्मा, बी ब्रह्मा, सी प्रजापति, डी स्वयंभू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू। प्रश्न नंबर 134 जो दूसरे के मन की बात जानने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए सर्वज्ञ, बी विद्वान, सी अंतर्यामी, डी ईश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्यामी। प्रश्न नंबर 135 शिक्षा संस्थाओं में डैश की समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। ए कालाधर, बी आतंकवाद, सी जनसंख्या, डी अनुशासन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुशासन। प्रश्न नंबर 136 अभिनव परीक्षा में प्रथम आने के लिए डैश कर रहा है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ए छाक छानना, बी खून पसीना एक करना, सी दौड़ धूप करना, डी जान पर खेलना। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी खून पसीना एक करना। प्रश्न नंबर 137 घर का ताला टूटा देकर डैश गई वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ए पीला पड़ना, बी पसीना पसीना होना, सी पैरों तले की जमीन खिसकना, डी सफ़ेद पड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैरों तले की जमीन खिसकना। एक क्वेश्चन नंबर 138 जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ए असंभावित, बी अकल्पित, सी आकस्मिक, डी अप्रत्याशित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 139 अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने चरित्र को खो देता है के रेखांकित अंशों में ए में त्रुटि है, बी में त्रुटि है, सी में त्रुटि है, डी में त्रुटि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। प्रश्न नंबर 140 भारत की मौजूदा वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत अनिश्चित है के रेखांकित अंशों में ए में त्रुटि है, बी में त्रुटि है, सी में त्रुटि है या डी में त्रुटि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। प्रश्न नंबर 141 निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए आकाश, बी अनंत, सी व्योम, डी नक्षत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नक्षत्र। प्रश्न नंबर 142 निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिवाकर, ए दिवाकर, बी दिनेश, सी कलानाथ, डी अंशुमाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
कलानाथ। प्रश्न नंबर 143 निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए नीर, बी जीवन, सी जंगम, डी जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जंगम। प्रश्न नंबर 144 निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए सरस्वती, बी रांची, सी वाणी, डी गिरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रांची। प्रश्न नंबर 145 अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का अर्थ है। ए स्वयंपाकी होना, बी अलग होना, सी संगत से हटकर काम करना, डी छुआछूत मानना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगत से हटकर काम करना। प्रश्न नंबर 146 दांत दिखाना मुहावरा का अर्थ है। ए मुंह चिढ़ाना, बी हंसी उड़ाना, सी क्रुद्ध होना, डी गिड़गिड़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिड़गिड़ाना। प्रश्न नंबर 147 सांप को दूध पिलाना मुहावरा का अर्थ है। ए शेषनाग की पूजा करना, बी टोटका करना, सी शत्रु का पोषण करना, डी शत्रु पर विश्वास करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शत्रु का पोषण करना है। प्रश्न नंबर 148 अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है। ए चिढ़ाना, बी धोखा देना, सी नकार देना, डी इशारा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नकार देना। प्रश्न नंबर 139 घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ है। ए निराश होना, बी थक जाना, सी विनती करना, डी अधीनता स्वीकार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधीनता स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 150 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तने वाला शब्द है। ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्देश। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न के ऊपर निर्दिष्ट समास वाले समस्त पद का चुनाव कीजिए। प्रश्न नंबर 151 कर्मधारय समास। ए नीलकमल, बी रामदीन, सी शताब्दी, डी राधा कृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीलकमल। बहुव्रीहि समास। ए कमल नयन, बी लंबोदर, सी दुर्जन, डी प्रतिक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंबोदर। द्वंद्व समास। ए नीलकंठ, बी खराखोटा, सी चरण कमल, डी शेर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खराखोटा। तत्पुरुष समास। ए गंगाजल, बी लला, सी नवग्रह, डी दुरात्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगाजल। प्रश्न नंबर 155 द्विगु समास। ए नवरात्र, बी ऊंच नीच, सी चक्रपाणी, डी पीताम्बर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवरात्र। प्रश्न नंबर 156 हाथों के तोते उड़ जाना का अर्थ है। ए दुख से हैरान हो जाना, बी काम बिगड़ जाने पर पछताना, सी चकित रह जाना, डी पछताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चकित रह जाना। प्रश्न नंबर 157 टोपी उछालना का अर्थ है। ए जीत की खुशी में टोपी को ऊपर फेंकना, बी अपमानित करना, सी सर पीटना हवा में, डी हवा में टोपी लहराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपमानित करना। प्रश्न नंबर 158 जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो। ए मेहमान, बी आगंतुक, सी अतिथि, डी संबंधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अतिथि। प्रश्न नंबर 159 आवश्यकता से अधिक वर्षा होना। ए अनावृष्टि, बी अतिवृष्टि, सी झंझावात, डी दुर्दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अतिवृष्टि। प्रश्न नंबर 160 जो वस्तु खाने योग्य हो। ए भोजन, बी अन्न, सी खाद्य, डी अखाद्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खाद्य। प्रश्न नंबर 161 नीचे दिए गए समानुपात डॉक्टर, मरीज, अध्यापक किस शब्द से पूर्ण कर सकते हैं। ए प्राचार्य, बी अभिभावक, सी विद्यार्थी, डी कर्मचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी।
प्रश्न नंबर 162 है, अध्यापक सम्मान प्राप्त करता है ए जो राजनीति में रुचि लेता है, बी जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, सी जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है, डी जो धर्म में रुचि रखता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है। प्रश्न नंबर 163, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए भगवान दास, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 164, कोई विद्यार्थी कक्षा में प्राय देर से आता है तो अध्यापक उसे ए कक्षा से बाहर खड़ा रहने के लिए कहें, बी उसे डांटे, सी उसके अभिभावक से शिकायत करें, डी देर से आने के कारण बताने सही बताने के लिए कहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी देर से आने का कारण सही बताने के लिए कहें। प्रश्न नंबर 165, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी मातृभाषा, डी क्षेत्रीय भाषा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मातृभाषा। प्रश्न नंबर 166, कक्षा में कई बार कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को ए कक्षा से निकाल देना चाहिए, बी उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए, सी उसे दंड देना चाहिए, डी उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 167, निम्नलिखित में से किसे अध्यापन शिक्षा में सुधार का दायित्व सौंपा गया है? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी एनआईईपीए, डी एनसीटीई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनसीटीई। प्रश्न नंबर 168, छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने का सबसे प्रभावशाली ढंग निम्न में से कौन सा है? ए दंड, बी शिक्षण विधि में सुधार, सी कक्षा से चले जाना, डी शिकायत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विधि में सुधार। प्रश्न नंबर 159, निम्नलिखित में से किसी एक का चयन करें जो अन्य तीन से भिन्न हो। ए लकड़ी, बी पत्थर, सी कॉर्क, डी कागज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्थर। प्रश्न नंबर 170, एक हाल की चौड़ाई 30 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? ए 20 मीटर, बी 40 मीटर, सी 30 मीटर, डी 35 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर। प्रश्न नंबर 171, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो ए प्रतिभाशाली हो, बी मंदबुद्धि हो, सी सामान्य हो, डी सभी प्रकार के हों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के हों। प्रश्न नंबर 172, विद्यार्थी द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए उसे प्रोत्साहित करें, बी उसे दंड दें, सी शिक्षण के समय प्रश्न न करने का सुझाव दे, डी प्रश्न की महत्ता पर भाषण दे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसे प्रोत्साहित करें। प्रश्न नंबर 173, 7, 12, 16, 19, 21 के क्रम की अगली संख्या क्या होगी? इसके ऑप्शंस है ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22। प्रश्न नंबर 174, नवोदय विद्यालय की स्थापना कौन से हित को दृष्टि में रखकर की गई? ए संपन्न वर्ग के बच्चों के, बी नगर के बच्चों के, सी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के, डी ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के। प्रश्न नंबर 175, किंडरगार्टन शब्द का निम्न में से क्या अर्थ है?
ए बच्चों का उद्यान, बी बच्चों का घर, सी बच्चों का स्कूल, डी बच्चों के खेल का मैदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के खेल का मैदान। प्रश्न नंबर 176, विद्यालय जीवन का सबसे अधिक बहुमूल्य तत्व इनमें से कौन सा है? ए पुस्तक पठन, बी शिक्षक विद्यार्थी संपर्क, सी परीक्षा में सफलता, डी नियमित आदतें पढ़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थी संपर्क। प्रश्न नंबर 177, शिक्षक को किस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? ए कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को, बी मंद बुद्धि के बच्चों को, सी साधारण बच्चों को, डी सभी बच्चों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों को। प्रश्न नंबर 178, शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होता है? ए विषय का ज्ञान बढ़ता है, बी उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, सी उनके शिक्षण का ढंग सुधरता है, डी उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके शिक्षण का ढंग सुधरता है। प्रश्न नंबर 179, शिक्षा के क्षेत्र की गंभीरतम समस्या है? ए सर्वत्र व्याप्त निरक्षरता, बी शिक्षा का माध्यम, सी परीक्षा का सुधार, डी शिक्षितों की बेरोजगारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वत्र व्याप्त निरक्षरता। प्रश्न नंबर 180, विद्यालय परीक्षा में सबसे अधिक सक्रिय किसे रहना चाहिए? ए प्रधानाध्यापक को, बी शिक्षक को, सी चपरासी को, डी इन सभी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानाध्यापक को। प्रश्न नंबर 181, कक्षा भवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए सजावट, बी श्याम पट, सी मेज कुर्सी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम पट। प्रश्न नंबर 182, कक्षा शिक्षण का कार्य ए सरल होता है, बी कठिन होता है, सी रुचिकर होता है, डी अरुचिकर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचिकर होता है। प्रश्न नंबर 183, शिक्षा की अवधि में किसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ए बालक को, बी अभिभावक को, सी शिक्षक को, डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालक को। प्रश्न नंबर 184, सच्ची शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है? ए विद्यालय, बी परिवार, सी विश्वविद्यालय, डी ये सभी स्थल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। प्रश्न नंबर 185, शिक्षा के किस क्षेत्र का उत्तरदायित्व सरकार को लेना चाहिए? ए प्रारंभिक शिक्षा, बी विकलांगों की शिक्षा, सी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, डी इन तीनों ही क्षेत्रों की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही क्षेत्रों की। प्रश्न नंबर 186, अनुशासन से शिक्षा में क्या सहायता मिलती है? ए कक्षा नियंत्रण आसान हो जाता है, बी इनसे व्यवहार में एकरूपता आती है, सी नियम पालन से सभ्य जीवन यापन आरंभ हो जाता है, डी आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक गुणों का संतुलित विकास होता है। प्रश्न नंबर 187, भारत के लिए इस समय कौन सी शिक्षा सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ए सैनिक शिक्षा, बी विज्ञान की शिक्षा, सी चरित्र गठन की शिक्षा, डी व्यावसायिक शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरित्र गठन की शिक्षा। प्रश्न नंबर 188, पाठ्यक्रम की रचना में किस तत्व को सर्वोच्च वरीयता दी जाए? ए शिक्षक की समर्थता, बी बच्चों की आवश्यकताएं तथा क्षमताएं, सी राष्ट्रीय आस्थाएं तथा मान्यताएं, डी सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदर्श। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवश्यकताएं तथा क्षमताएं। प्रश्न नंबर 189, हमारी नई शिक्षा नीति का प्रश्न नंबर 189, हमारी नई शिक्षा नीति का पालन किस नियम से हो? ए संसाधनों के अनुरूप धीरे चलो, बी प्रक्रिया को अपने आप घटित होने दो, सी लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व कोई पड़ाव या विश्राम नहीं, डी शिक्षितों तथा साक्षरों को अतिरिक्त लाभ प्रेरणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व कोई पड़ाव या विश्राम नहीं। प्रश्न नंबर 190, सुशिक्षित व्यक्ति अधिक डैश हो जाता है? ए औपचारिक, बी दयालु, सी शिष्ट, डी बुद्धिमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान।
प्रश्न नंबर 191, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिमाचल प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित है? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी भूटान, डी तिब्बत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। प्रश्न नंबर 192, हिमाचल के में वन अधिग्रहित कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र है? ए 39, बी 43, सी 50, डी 56। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 39। प्रश्न नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है? ए कांगड़ा, बी ऊना, सी सोलन, डी सिरमौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊना। प्रश्न नंबर 194, सुप्रसिद्ध जास्कर शिखा कौन से क्षेत्र में स्थित है? ए उच्चतर हिमालय, बी भीतरी हिमालय, सी शिवालिक घाटी, डी नेपाल की सीमा के पास स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्चतर हिमालय। प्रश्न नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील सबसे बड़ी है? ए गड़ासरू, बी खजियार, सी गोविंद सागर, डी चंद्रलाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर। प्रश्न नंबर 196, सुप्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र का संबंध किस जिले से? ए चंबा, बी कांगड़ा, सी शिमला, डी सोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा। प्रश्न नंबर 197, रिवास झील जो कि तैरने वाले टापू के लिए प्रसिद्ध है कौन से जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी बिलासपुर, सी चंबा, डी मंडी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मंडी। प्रश्न नंबर 198, सतलुज नदी कौन से जिले में ना तो बहती है और ना ही छूती है? ए किन्नौर, बी सिरमौर, सी शिमला, डी बिलासपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिरमौर। प्रश्न नंबर 199, चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ए चलदर, बी अरिकरी, सी गिरिगंगा, डी मुक्तेश्वरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरिकरी। प्रश्न नंबर 200, रेणुका झील किस जिले में स्थित है? ए सोलन, बी बिलासपुर, सी सिरमौर, डी शिमला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिरमौर। दोस्तों ये था टीजीटी आर्ट्स कमीशन 1998। इसी प्रकार के प्रीवियस के क्वेश्चन को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए